Once upon a time, in a magical underwater kingdom, there lived a beautiful mermaid named Marina. Marina was not just beautiful, she was also kind-hearted and brave. She had long, shimmering golden hair, and her tail was as green as the seaweed that danced with the waves. She lived in a colorful coral palace at the bottom of the ocean, where fish swam happily and sea creatures played games all day. Marina loved exploring the ocean, discovering new places, and making friends with all the creatures she met. But she had one wish. She wanted to see the world above the water, the land where the sun shone brightly and the birds flew in the sky. However, Marina had never been to the surface, for she had always been told that the world above was dangerous for mermaids. One sunny morning, Marina was swimming near the surface when she heard someone crying. She followed the sound and found a small, blue starfish who was trapped in a fishing net. The little starfish was frightened and didn't know how to escape. Marina's heart filled with compassion, and she carefully freed the starfish from the net. "Thank you, kind mermaid," said the starfish, its eyes sparkling with gratitude. "I was lost, and I didn't know how to get back home." Marina smiled and said, "Don't worry, little one. I'll help you find your way." Together, they began their journey. As they swam through the sparkling coral reefs, they met many sea creatures, a wise old turtle, a playful dolphin, and a shy octopus. Each creature gave them advice on how to find the starfish's home, but they all warned Marina about the dangers of traveling to unknown places. After a long journey, they finally reached a beautiful, sandy beach. The starfish recognized the place and was overjoyed. "This is my home," it exclaimed. "Thank you for bringing me back." Marina smiled, but she was also sad to leave her new friend. As she turned to swim back to the ocean, the starfish spoke up. "You are welcome here anytime. The land and sea are not so different after all. We are all part of the same beautiful world." Marina realized that the world above the water wasn't as dangerous as she had thought. She now had a new dream: to explore both the land and the sea, making friends wherever she went. From that day on, Marina became a legend in the underwater kingdom. She would often visit the surface, making new friends and learning about the world beyond the waves. And every time she returned to the ocean, she shared stories of her adventures, teaching everyone that kindness and bravery could open doors to magical places. एक समय की बात है, एक जादुई समुंदरी रजा में एक खूबसूरत मरमेड रहती थी जिसका नाम मरीना था। मरीना सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत दयालु और साहसी था। उसके लंबे, चमकते हुए सोना जैसे बाल थे और उसका टेल खूबसूरत हरी थी। मरीना अपने रंग बिरंगे कोरल के महल में रहती थी, जो समुंदर के गहराइयों में था, जहां मछलियां खुशी से तैरती थी और समुंदरी जीव हर दिन खेलते थे। मरीना को समुंदर को घूमना और नई जगह ढूंढना बहुत पसंद था। उसे नए दोस्तों से मिलने का, समुंदर के जीवों के साथ खेलने का आनंद मिलता था। लेकिन उसका एक सपना था, वो समुंदर के ऊपर का दुनिया देखना चाहती थी, जहां सूरज चमकता है और पंछी आकाश में उड़ते हैं। लेकिन मरीना कभी समुंदर के ऊपर नहीं गई थी, क्योंकि यूं से हमेशा कहा गया था कि ऊपर की दुनिया मरमेड्स के लिए खतरनाक होती है। एक दिन जब मरीना समुंदर के किनारे के पास तैर रही थी, तो उसने कुछ रोना सुनने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ का पीछा करते हुए एक छोटी सी नीली तरह का टुकड़ा देखती है, जो एक फिशिंग नेट में फंसा हुआ था। वो तरह का टुकड़ा डर से कांप रहा था और उसे पता नहीं चल रहा था कि कैसे छुटकारा पाए। मरीना का दिल भर आया और उसने धीरे से उस तरह के टुकड़े को नेट से छुड़ा दिया। "शुक्रिया, दयालु मरमेड," तरह के टुकड़े ने कहा। उसकी आंखों में आभारी दिखाई दे रही थी। "मैं खो गया था और मुझे अपना घर वापस जाना नहीं आता था।" मरीना मुस्कुराते हुए बोली, "कोई बात नहीं छोटे दोस्त, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊंगी।" दोनों मिलकर अपने सफ़र पर निकल पड़े। जब वो चमकते हुए कोरल रीफ्स के बीच से तैर रहे थे, तो उन्होंने कई समुद्री जीवों से मुलाकात की। एक समझदार पुराना कछुआ, एक खिलाड़ी डॉल्फिन और एक शर्मीला ऑक्टोपस। हर एक जीव ने उन्हें स्टारफिश के घर तक पहुंचने का रास्ता बताया, लेकिन सभी ने मरीना को अजनबी जगह पर सफ़र करने के खतरे के बारे में चेतावनी दी। काफ़ी सफ़र के बाद उन्होंने एक सुंदर, रेत से भरा हुआ किनारा देखा।
तरा का टुकड़ा वहां अपने घर को देखकर खुश हो गया। यह मेरा घर है, उसने खुशी से कहा। मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। मरीना मुस्कुराए, लेकिन उसे अपने नए दोस्त से अलविदा लेने का दुख हो रहा था। जैसे ही वो समुंदर की तरफ लौट रही थी, तरा का टुकड़ा बोला, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। समुंदर और धरती इतने अलग नहीं हैं, हम सब एक ही सुंदर दुनिया का हिस्सा हैं। मरीना को यह समझ में आया कि ऊपर की दुनिया उतनी खतरनाक नहीं थी जितना उसने सोचा था। अब उसका एक नया सपना था, दोनों धरती और समुंदर का अनुभव करना और हर जगह नए दोस्त बनाना। उस दिन के बाद मरीना समुंदर के राज्य में एक कहानी बन गई। वो अक्सर समुंदर के ऊपर जाकर नए दोस्त बनाती और दुनिया के बारे में नई बातें सीखती। और जब भी वो समुंदर वापस आती, अपनी सफ़र की कहानियाँ सबको सुनाती, सबको ये सिखाती कि दया और साहस से हम किसी भी दुनिया के दरवाजे खोल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक जादुई झील थी। उस झील में जलपरी नायरा रहती थी। नायरा बहुत दयालु थी और झील की हर मछली, पक्षी और जानवर की मदद करती थी। लेकिन झील के पास एक रहस्य था। झील में एक ऐसा मोती था जो किसी की भी हर मनोकामना पूरी कर सकता था। गांव के लोग इस झील के बारे में जानते थे, लेकिन मोती तक पहुंचने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि झील के चारों तरफ एक खतरनाक तूफानी गहरा था। एक दिन गांव में एक छोटा लड़का अर्जुन अपनी बहन मीरा के साथ झील के पास खेलने गया। अचानक मीरा झील में गिर गई। अर्जुन घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। नायरा ने ये देखा और झट से झील से बाहर आई। उसने मीरा को बचाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मीरा और अर्जुन ने नायरा को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने नायरा से झील के रहस्य के बारे में पूछा। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये झील तुम्हारे अच्छे दिलों को पहचानती है। अगर तुम सच्चे दिल से कुछ मांगोगी तो मोती तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन याद रखना, ये मोती लालच को कभी पूरा नहीं करता। अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोग खुश और सुरक्षित रहें। ये सुनकर झील चमकने लगी और मोती अर्जुन के पास आ गया। मोती ने गांव की हर समस्या का हल कर दिया। खेतों में फसल उगाई, नदी का पानी साफ हो गया और हर कोई खुशहाल हो गया। झील और नायरा का ये जादू गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। अर्जुन और मीरा ने सबको सिखाया कि सच्चाई और दयालुता सबसे बड़ी ताकत होती है। Long ago, there was a magical lake near a small village. In this lake lived a kind-hearted mermaid named Naira. Naira was very helpful and cared for all the fish, birds, and animals in the lake. But the lake had a secret. It held a special pearl that could grant any true wish. The villagers knew about the lake but were too scared to go near it because a dangerous storm surrounded the pearl. One day, a little boy named Arjun was playing near the lake with his younger sister Mira. Suddenly, Mira slipped and fell into the water. Arjun panicked and shouted for help. Naira, hearing his cries, quickly came to the surface and rescued Mira. Don't worry, you're safe now, Naira said with a smile. Arjun and Mira thanked her. Curious, Arjun asked Naira about the secret of the lake. Naira smiled and said, this lake recognizes kind hearts. If you truly wish for something good, the pearl will help you. But remember, it never fulfills wishes born out of greed. Arjun thought for a moment and said, I don't want anything for myself. I just wish for my village to be happy and safe. Hearing this, the lake began to shine brightly, and the magical pearl appeared before Arjun. The pearl granted his wish. The fields in the village became fertile, the river water turned clean, and all the villagers were happy. The magic of the lake and Naira's kindness stayed in the hearts of the villagers forever. Arjun and Mira taught everyone that kindness and selflessness are the greatest powers of all.
समुद्र की शरारती जलपरी। गहरे नीले समुद्र में जहाँ सूरज की किरणें पानी में सुनहरी चमक बिखेर रही थी, एक खूबसूरत जलपरी रहती थी, नीरा। उसकी हरी चमकती आंखें और चांदी जैसे नीले बाल पानी में लहराते थे और उसकी टेल मोतियों की तरह चमक रही थी। मगर सबसे खास बात ये थी कि नीरा बाकी जलपरियों से मुख्तलिफ थी। वो शरारती थी, तेज थी और सबसे बढ़कर उसे हमेशा इंसानों की दुनिया देखने की ख्वाहिश थी। ऊपर की दुनिया कैसी होगी, नीरा अक्सर सोचती। क्या वहाँ वाकई बड़े बड़े महल होते हैं? क्या वहाँ के लोग हमारे जैसे होते हैं? मगर उसकी माँ, जो समुद्री रानी थी, हमेशा उसे खबरदार करती थी, नीरा, इंसानों की दुनिया हमारे लिए नहीं है। अगर वो तुम्हें देख लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन नीरा के कानों में ये सब नहीं जाता था। उसे तो बस एक ही बात की धुन थी, इंसानों को करीब से देखना है। एक दिन जब बाकी जलपरियां गहरे समुद्र में मोती इकट्ठा कर रही थी, नीरा ने मौका देखकर तेजी से ऊपर की तरफ तैरना शुरू किया। उसका दोस्त पीकू, जो एक आलसी मगर समझदार कछुआ था, उसने रोकने की कोशिश की। नीरा, मत जाओ, ऊपर इंसान है, पीकू ने खबरदार किया। बस एक बार देखूंगी और वापस आ जाऊंगी, नीरा ने हंसी से कहा और पलक झपकते ही समुद्र की सतह तक पहुंच गई। नीरा ने पहली बार सूरज को इतने करीब से देखा था। आसमान नीला था और दूर दूर तक फैली रेत सुनहरी चमक रही थी। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। तभी उसकी नजर किनारे पर खेलते एक छोटे लड़के पर पड़ी। वो लड़का आरव था, करीब 10 साल का, चंचल और जिज्ञासु। वो रेत में एक किला बना रहा था, मगर तभी हवा चली और उसकी टोपी उड़कर सीधा समंदर में गिर गई। ओह नहीं! आरव भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर लहरों ने उसे दूर धकेल दिया। नीरा को लगा, अगर मैं उसकी टोपी वापस कर दूं तो। बिना कुछ सोचे वो पानी में गोता लगाकर टोपी तक पहुंची और उसे वापस किनारे की तरफ उछाल दिया। आरव चौंक गया। उसने देखा कि पानी में कोई अजीब सी लड़की थी, जिसकी तुम मछली जैसी थी। तुम जलपरी हो? उसने हैरानी से पूछा। नीरा मुस्कुराई। हाँ, और सुपर फास्ट जलपरी। धीरे धीरे नीरा और आरव की दोस्ती होने लगी। हर शाम जब सूरज ढलता, नीरा छुपकर किनारे पर आती और दोनों ढेर सारी बातें करते। आरव ने उसे इंसानों की दुनिया के बारे में बताया, पेड़, जानवर, घर और स्वादिष्ट खाना। बदले में नीरा ने उसे समंदर की कहानियां सुनाई, चमकती मोतियों की गुफाएं, विशाल व्हेल और छुपे हुए समुद्री खजाने। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उनकी दोस्ती को खतरे में डाल सकता था। गांव के कुछ लोग ने आरव को अकेला समुद्र किनारे जाते हुए देख लिया था। उन्हें शक हुआ कि वो किसी राज से मिल रहा है। क्या वो किसी समुद्री जीव से दोस्ती कर रहा है? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। आरव ने डरते डरते नीरा को बताया, अगर वो तुम्हें देख लेंगे तो शायद तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नीरा को अपनी माँ की बात याद आ गई। इंसानों की दुनिया हमारे लिए महफूज नहीं है, शायद मुझे अब यहाँ नहीं आना चाहिए, उसने उदास होकर कहा। मगर अगले ही दिन समुद्र में तेजी से आंधी आ गई। लहरों ने जोर पकड़ लिया और आरव की नाव, जो किनारे पर बनी थी, समंदर में बहने लगी। आरव उसे बचाने दौड़ा, मगर अचानक उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। नीरा ने देखा कि उसका दोस्त खतरे में है। बिना कुछ सोचे वो तेजी से आरव की तरफ बढ़ी। उसने उसे पकड़कर सतह तक उठाया और धीरे धीरे किनारे तक ले आई।
गांव के कुछ लोग ये सब देख रहे थे। पहले तो वो डर गए, मगर जब उन्होंने देखा कि नीरा ने आरव की जान बचाई तो वो समझ गए कि वो कोई खतरा नहीं थी। यह जलपरी हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी मदद के लिए आई है, गांव के मुखिया ने कहा। गांव के लोगों ने वादा किया कि वो समुद्र को साफ रखेंगे ताकि जलपरियां और समुद्री जीव वहां महफूज रह सके। अब नीरा और आरव की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। नीरा जान गई थी कि सच्ची दोस्ती किसी भी डर या तफरीक से बड़ी होती है, और इस तरह एक जलपरी और एक इंसान की दोस्ती दो अलग अलग संसारों को जोड़ने वाली सबसे खूबसूरत कहानी बन गई। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective.